Class 11, Subject Education, Chapter 1. And our topic for today is Scope and Forms of Education. There are two types of forms of education, formal and informal. Number 1, formal education. See, formal education is something which is done in accordance with rules of convention or etiquette, or something which is official. Okay, informal education is something you can call it unofficial. It's a kind of unofficial style. Formal education is classroom based, provided by trained teachers, where informal education happens outside the classroom in after school programs, community based organizations, museums, libraries, or at home. Okay, so let's have a look on our first para, formal education. This is a prominent form of education widely acknowledged by the educationist. The formal education is related with the education which is provided in school and colleges in a restricted time, restricted opportunities, restricted syllabus, restricted evaluation and timetable, etc. For example, in the school, the teacher educates the children according to definite syllabus or course of studies aiming at a definite goal. The teacher follows a fixed and predetermined program. In such formal kind of education, the time, place of teaching and content of teaching are fixed, and the students have to arrive at the school at the specific time to receive the education. This education is also fixed in terms of years. See, in formal education, first of all, this education is very prominent, very popular, very famous. Okay, in this education, everything is pre-planned. When a student goes to school, there is a fixed timetable. The fixed timetable means pre-planned. Restricted time, एक टाइम फिक्स होता है. लिमिट, restricted मीन्स लिमिट होती है. restricted opportunities होती हैं, एक सिलेबस होता है. तो सब कुछ क्या होता है? प्री प्लान, प्रीफिक्स, यू कैन कॉल इट प्रीफिक्स होता है. ठीक है. फॉर्मल एजुकेशन में ये एक इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑफिशियल एजुकेशन जिसमें कि सब कुछ प्री प्लान होता है, फिक्स होता है. लाइक जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका एक एम होता है, उसका एक गोल होता है कि वो पढ़ने जा रहा है. वहाँ पे उसका एक फ़िक्स टाइम टेबल होता है. स्कूल आने का एक टाइम होता है कि वो इस टाइम आएगा और वहाँ पे स्टडी करेगा और एक टाइम पे वापस चला जाएगा. टीचर का भी एक कंटेंट डिसाइड होता है कि उसको ये पढ़ाना है और इस प्लेस पे ही एजुकेशन मतलब देनी है. यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पर आना है. तो सब कुछ क्या होता है? फिक्स होता है. इवन इसका जो टाइम लिमिट होता है वो भी फिक्स्ड होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो आवर टाइम लिमिट इज़ फ्रॉम नर्सरी टू 12th. इतने ईयर्स का, इतने पीरियड का, 12, 13, 14 ईयर्स का एक पीरियड होता है कि हाँ, हमें इतने साल स्कूल एजुकेशन लेना है. आफ्टर स्कूल ग्रेजुएशन के लिए 3 इयर्स, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 इयर्स. तो इस तरीके से इसका क्या है? फॉर्मल एजुकेशन का एक फ़िक्स टाइम होता है, फ़िक्स प्लेस होता है, फ़िक्स टाइम टेबल होता है, फ़िक्स स्केड्यूल होता है, सब कुछ फ़िक्स होता है. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन इनफॉर्मल एजुकेशन. Informal education supplements the formal education. It is completely free from all foundations of time, contents, person and definite aims. Thus it becomes free from all bondages. See, in formal education it is kind of unofficial. मतलब जहाँ पे भी कोई एटिकेट सिस्टम इस तरीके से नहीं होता, या प्री, आप कह सकते हो प्री फिक्स या प्री डिफाइंड या प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. ये एक ऐसे एजुकेशन होते हैं जो आप एकदम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द बाउंड्रीज. किसी भी तरीके का कोई बाउंड्री, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई कंटेंट नहीं होता, कोई फिक्स एम नहीं होता है. ये हर तरीके से इट इज़ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. और इसको आप कहीं भी जाकर के ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई फिक्स टाइम टेबल, फिक्स सिलेबस, फिक्स टीचर, फिक्स स्कूल या फिक्स प्लेस, फिक्स डिसिप्लिन रूल, ऐसा कुछ भी नहीं होता.
नन ऑफ दीज। इसको आप कहीं भी ले सकते हो, ग्राउंड में ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। एजुकेशन ऑफ इनफॉर्मल नेचर कैन बी रिसीव्ड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, इन द कंपनी ऑफ फैमिली मेम्बर्स, थ्रू कॉन्वर्सेशन विद अदर्स, यानी कि स्पोर्ट ग्राउंड में भी ले सकते हैं आप। फैमिली में भी आपको ये एजुकेशन मिल सकती है। कैसे? थ्रू कॉन्वर्सेशन। जब परिवार फैमिली के लोगों से हम आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत, उसके थ्रू भी आप ये एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। इवन रोमिंग अराउंड समवेयर विदाउट एनी डेफिनेट पर्पज़। आप घूम फिर करके भी, यानी एक से वन प्लेस टू अनदर आप जा करके यू कैन रिसीव एजुकेशन। और यहाँ पे कोई एक फिक्स, देर इज़ नो फिक्स पर्पज़, नो फिक्स्ड एम। एवरीथिंग इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन, एनी काइंड ऑफ लिमिट्स। दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिकॉज कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप हमेशा ले सकते हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं होते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल चाइल्ड लर्न्स थ्रू कॉन्टैक्ट एंड imitation of other in the family. He explores many new things for himself when he moves to a new place. See, here we can see a example of a child of a यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चा जो है वो अपने फैमिली में लोगों को इमिटेट करके, यानी कि उनको बच्चे हमेशा क्या करते हैं? दूसरे को देख करके सीखते हैं, इमिटेशन करते हैं, कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चे दूसरों को इमिटेट करके सीखते हैं, तो इस तरीके से हम इनफॉर्मल एजुकेशन को ले सकते हैं। So it is a kind of education which is free from all the limitations, all the boundaries. Okay, so these are the scope of education, or you can call it types of education. I hope you can understand easily. So that's all for today. Thank you so much.